Okay, good evening, church, and welcome to our midweek service. And what an amazing week we had. We had times of recording the word and fellowshipping and times of prayer. This week we were at Kaveri's home and Neeta and all of them. What's amazing about this time this week was me and Chandra were there, and she gathered about 4 families, and we had the sweetest time. We shared the word, salvations happened there, and what's more than anything is like there's God's presence that day. And we came out yesterday night, and it was like heart stirring to see what God is doing in these places among God's people. So even as we go into this service today, we have a beautiful service. It's anointed message, and I encourage you to let's worship the Lord wherever you are. Just stand and worship the Lord, or sit, whatever you want to do, but let's worship the Lord and enjoy our service today. Let's pray. Father, we just thank you, we praise you, we worship you, Lord. We exalt your name today. Give us a beautiful, beautiful time in your worship, in our praises to you, Lord, and give us a great time in the word. In Jesus' name we pray. Amen. It's not what
what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll give you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. I sing your praises forever, deeper in love with you. You're in your courts where I'm close to your throne. I find where I belong. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. And I sing your praises forever, deeper in love with you. You're in your courts where I'm close to your throne. I find where I belong.
Yes, Lord, we just thank you for this beautiful time, Lord. We worship you, Lord. Take us to your throne room today. Like Isaiah saw you, and he saw the angels singing, Holy, Holy, Holy. God, thank you, Jesus. And we are at the throne of grace. Lord, we deserve, we seek for mercy, Lord. We seek for mercy. Lord, we worship you today. We exalt your name. Lord, walk in our midst today. Lord, walk in our midst in our service today. Minister to us very specially, Lord. Lord, show us how great is your holiness. Lord, show us. Lord, show us who you are today. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We worship you tonight. It was a beautiful service tonight. You are close where I'm close to Yes, your Lord. deeper in love with you. Jesus. You're really Say holy. close where I'm close to your throne. I find it right to Thank you, know. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you today. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. नमस्कार दोस्तों, आइए इस वचन में जाने से पहले एक छोटा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मौके के लिए। प्रभु मुझे अभिषेक कर और मेरे द्वारा हम सबसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का वचन जो है मैं भजन संहिता 42वां अध्याय से बोलना चाहता हूँ। इसमें जाने से पहले जो है मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड जो है उसके बारे में, परिचय में। भजन संहिता 42 जो है डेविड ने उस समय लिखा है जब डेविड जो है अब्सलोम से अपनी जान बचाने के लिए जो है भाग रहा था। और उस वक्त जो है और भी बहुत से मुसीबतें आई, उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे, उसके शूरवीर लोग थे, उसके घराने के कुछ लोग भी थे। और इन सब के बावजूद भी क्या होते, दूसरा शमूएल का 16वां अध्याय में हम देखते हैं शिमई नाम का एक व्यक्ति है। और शिमई जो है उसे डेविड को जो है वचन 7 और 8 और 13 में देखा जाए तो डेविड को वो जो है बहुत ही कोसता है और डेविड को वो जो है बहुत ही शाप देता है। और आगे का वचन में देखा तो डेविड के ऊपर वो पत्थर भी मारता है। इन सब के बावजूद भी जो है डेविड इसका कोई भी परवाह नहीं करता है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही रहता है, वो वहां से जाना और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। इस वचन को देखेंगे भजन संहिता का 42वां अध्याय और वचन 1 से 5 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था और जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वचन 1 में देखा जाए तो हम देखते हैं कि मैं हाल ही में जो है ज्योग्राफिकल चैनल देख रहा था। जो है शेर जो है हिरनी के पीछे जो है पड़ा है और हिरनी भी जो है बहुत ही तेजी से वो भागती है और अंत में मैं देखता हूँ कि हिरनी जो है अपनी जान को बचाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो एक ही चीज, वो हाफते हाफते जो है सिर्फ पानी को ढूंढती है।
और आप अगर जानते हैं तो ज्योग्राफिकल चैनल में ये भी बताया, जब हिरनी जो है इस तरह वो भागती है तो वो अपने शरीर में जो है 80% जो पानी है उसे वो खर्च कर देती है। इससे ज्यादा अगर वो दौड़ेगी तो वो उसका जान भी जा सकती है। तो इसीलिए उसे अभी पानी का सख्त जरूरत है। और हमें ये सब अच्छा लगता है, कभी कभी हम जब ज्योग्राफिकल चैनल में ये देखते थे हिरनी जो है बच गई है, शेर को वो उसका शिकार नहीं मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो डेविड के जीवन में भी इसी तरह कुछ है। डेविड जो है भाग रहे अपने दुश्मन से, उसके बाद सब कुछ है फिर भी जो है वो हाफ रहे। वो बोल रहे कि मैं जो है तेरे लिए हाफ रहा हूं परमेश्वर, तेरे वचनों के लिए मैं जो है प्यासा हूं। उसके बाद सब कुछ, इस भागते वक्त भी सब कुछ है उसके पास, ऐशो आराम सब कुछ है, फिर भी उसके वो जो है सिर्फ संतुष्टि परमेश्वर के उपस्थिति में जाने से ही उसे मिलेगी, ये बात उसे मालूम है। क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐशो आराम जो है इसका जगह नहीं ले सकते। डेविड ये जान चुका है, इसके ये जो अभी जो वो स्टेज में है, जिस उम्र में वो जी रहे, वो अभी कई साल तक वो राजा भी रह चुका है, उसके कई सारे नौकर भी उसके साथ में, शूरवीर लोग भी उसके साथ में है, फिर भी वो जो है सिर्फ और सिर्फ उसका दिशा यही है। फिर भी वो जब शिमाई भी जब उसको शांत भी देता है, उसके ऊपर पत्थर भी मारते हैं, तो वो कुछ भी वहां पर नहीं करते, वो परवाह नहीं करते। कई बार जो है हमें भी जो है हमारी जिंदगी में भी इस तरह का सताव हो सकता है, हम परीक्षा में हो सकते हैं, और ये सब के बावजूद भी जो है हम आज देखेंगे डेविड ने ऐसा क्या किया जिससे हमें एक सीख मिलेगी आज, वही हम लोग देखेंगे। मैं 3 चीज के बारे में ज्यादातर वर्णन करना चाहता हूँ, डेविड ने क्या किया। पहली बात हमें याद रखना है वो ये है कि डेविड ये जान लिया कि वो एक युद्ध में, और युद्ध किसका रहता है, वो है परमेश्वर का, है ना। युद्ध जब हम अपने ताकत से लड़ेंगे अपने दुश्मन से, तो हम जो है क्या है, हारने का पूरा संभावना है। लेकिन डेविड जानता है कि उसका जो शक्ति है, उसका सामर्थ्य जो है वो परमेश्वर से आती है, इसीलिए वो अपने आस जो है सिर्फ वहीं पर वो लगाए रखा है और कहीं पर भी नहीं। डेविड पूरी तरह ये जान चुका है, ये दुश्मन जो है उसका कोई अलौकिक दुश्मन है, वो है खुद शैतान है। और इसमें डेविड और एक बात जान लेता है कि ये जो युद्ध जो है वाकई सच्चा युद्ध है, ये भी हमें जान लेना चाहिए कि वाकई ये सच्चा युद्ध है। और दूसरी और इसमें भी बी पार्ट में देखा है तो ये जितना सच है उतना झूठ भी है, और यही सच्चा झूठा है। और क्योंकि शैतान क्या करते हैं, कई बार वो हमें जो है कुछ चीजों को बताने के लिए वो प्रमाण लेकर आता है। जैसे जेकब के पास उसके बच्चे लोग आए कि पापा यूसुफ जो है मर गया, जोसेफ जो है मर गया, ये रहा उसका कपड़ा और जिसमें खून लगा था, और जेकब ने विश्वास कर लिया। कई बार हम भी इसी तरह सबूत को देखकर जो है विश्वास कर लेते हैं। नहीं, हमारा युद्ध जो है वो अलौकिक है, वो सुपरनैचुरल है। हमें परमेश्वर के वचन में देखना है, ना कि किसी और दिशा में। क्योंकि शैतान जो है कई बार जो है हमारे कानों में भी गुनगुनाता है, वो बोलते हैं कि तुम हारे हुए व्यक्ति हो, तुम किसी चीज के काबिल नहीं हो। वो कभी कभी हम इवन चर्च में भी जाते हैं तभी भी वो कान में गुनगुनाता है और बोलते कि तुम स्तुति आराधना करने के भी लायक नहीं हो, याद है तुमने उस दिन क्या किया था। वो हमें अपना पापों को ये करते हैं। लेकिन जितना हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, जितना हम ताजा होकर परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो और शैतान को हम बता सकते हैं कि तेरा अंजाम के बारे में। शैतान जो है हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र में जो है हावी होता है। वो बोलते कि इवन वो जो है हमारे जीवन साथी के बीच में भी आते हैं। वो बोलते कि तुम जो है इसके लिए बने ही नहीं हो, और देखो वो लोग कितने सुखी है, वो जोड़े कितने सुखी है। इस तरह वो दोष भी लगाते हैं, और इस तरह वो कई चीजों में भी दोष लगा सकते हैं, चाहे वो हमारे काम काज में, चाहे हम छोटे मोटे जो भी हम सेवा भी कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, उसमें भी वो हमें शक में डालते हैं वाकई हम इसके लायक नहीं है। और दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ वो ये है कि वचन 4 में हम देखते हैं कि वचन 4 में जाने से पहले तीसरा वचन के बारे में ज्यादा बोलना चाहता हूँ। वो ये है, कई बार ऐसे परिस्थितियों में जाते हैं
तो वहां पर एक वचन बहुत ही अनोखा वचन है। यहाँ पर लोग बोलते हैं, ये अविश्वासी लोग हो सकते हैं, वो बोलते हैं, कहाँ है तेरा परमेश्वर जिसका तू इतना सेवा करते है? देखो तेरा नौकरी चली गई, देखो तू आर्थिक स्थिति में अभी आ पहुंचा है, इस महामारी में जो है तुमको कोई पूछ रहे नहीं। इस तरह वो और भी दोष लगाते, कहाँ है तेरा परमेश्वर? तूने हमेशा परमेश्वर को पहले रखा है। उस वक्त हमें एक ही बात याद रखना है कि हम एक युद्ध में हैं और परमेश्वर के लिए हम जो है युद्ध में चल रहे हैं। चाहे हम उदासी में भी रहने दो, वो एक तरीका का युद्ध है। हम इस युद्ध में वाकई कामयाब होकर आएंगे। वचन 4 में बोलते हैं कि वचन 4 में बोलते हैं हमें अपने आप का, अपना प्राण का जो है सुनना बंद करना है, क्योंकि प्राण क्या बोलती है एकदम। यहाँ पर वचन 4 में बोलते हैं, ओ मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार के साथ धन्यवाद करके उत्सव वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर का स्तुति। ये सब जो है अतीत है, ये हो गया। हम अतीत में जी नहीं सकते। प्राण हमेशा अतीत के बारे में सोचता है, पिछले दिनों में क्या हुआ था, आप देख तो तेरा हालत क्या है, इस तरह बोलते हैं। हमें इस वक्त जो है खुद का कभी नहीं सुनना है, प्राण का नहीं सुनना है। और इससे अच्छा हमें जो है क्या करना है, उस वक्त हमें वचन में जाना है ज्यादातर। और जब इस तरह हमें इस सिचुएशन में किस तरह मुकाबला करना है, हमें शैतान का मुकाबला उसके परमेश्वर के वचनों से और परमेश्वर की स्तुति आराधना से उसका मुकाबला करना है। जब ऐसा मुकाबला करेंगे तो वो चला जाएगा, क्योंकि जब हम उसके स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर का, तो क्या होते हैं, हमारा दुख जो है वो लगभग गायब हो जाती है और शैतान भी जो है उसके लिए कोई भी जगह नहीं रहती। और इसी वक्त तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें जो है परमेश्वर के पास जाना चाहिए, कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। इस महामारी में मैं देखता हूँ कि हम वाकई तकलीफ में, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते, लेकिन जो है हमारे पास एक साधन है। हम जो है निरंतर जो है मॉर्निंग डिवोशन देखते हैं और सुनते हैं, और हम पर बाइबल कॉलेज है हमारा, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पास्टर का कि बाइबल कॉलेज हम वचन ही हमें जिला के रख सकती है। और जब आप वचन 11 में बोलते हैं डेविड कि जब मैं उसकी तरफ देखता हूं तो मेरे चेहरे में एक रौनक आती है, और इस तरह वो सांत्वना पाते हैं अपने आप से। वो जो है वो इतना खुश होते हैं, उसकी तरफ देखा है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमें भी परिस्थिति में उसकी तरफ जो है देखना चाहिए, ना कि अपनी तरफ, क्योंकि हम अपने आप को देखेंगे तो हम जो है निराशा ही होंगे। हमें इसलिए क्या करना चाहिए, हम सबके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा को हमें बोलना चाहिए कि तू जो है मेरे अंदर से राज कर। और पवित्र आत्मा को बोलना चाहिए कि आत्मा तू प्राण को निर्देश दे कि क्या करना है, किस दिशा में जाना है, क्या करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो जो भी संकट का समय है वो यूं निकल जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि डेविड डेविड को जो है जब ये भाग रहा था, जब ये जंगलों में था, डेविड जो है अभी उसका सब कुछ जाने वाला था, उसका राजगद्दी छीनने वाला था, उसका परिवार के लोग भी मरने वाले थे, और शायद किसी को मिलने वाला भी नहीं था आगे देखा है तो। लेकिन डेविड को इस चीजों का कोई भी दुख नहीं है। डेविड का सिर्फ एक ही खोज है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना और उसकी स्तुति आराधना करना। तो जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कई बार जो है हम दूसरे आवाज भी सुनते हैं, दूसरे आवाज को सुनकर जो है हम बहक जाते हैं। और मैं उन दिनों में कितना अच्छा था, मैं उन दिनों में उनके साथ जो है परमेश्वर के भवन में जाता था, कितना अच्छा था, अभी सब कुछ चला गया, क्या हो गया मेरा, क्या होने वाला है। इस तरह जब हम अपने भावनाओं में बहने के लिए शुरू होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे आत्मा में वो क्या करते हैं, एक जहर बोलने का पूरी तरह कोशिश करते हैं। हमें भावनाओं में नहीं, हमें इस संकट के काल में क्या करना है, हमें जो है आत्मा का जो निर्देश रहता है वही सुनना है। डेविड ने भी वही किया। डेविड जो है इस भजन संहिता को उस वक्त लिखा था जब अब्सलोम से वो भाग रहा था, और भाग के वो जब जंगलों में जाते हैं तो इस तरह वो लिखते हैं कि मैं जो है अभी मैं तेरे लिए हाँफ रहा हूं परमेश्वर, और जो है मैं अभी मेरा आंसू जो है वही मेरा खाना बन चुका है। और इस तरह वो वर्णन करते हैं अपने जो तकलीफ को।
लेकिन वो यहाँ वहां भी नहीं थे, उसके लिए कई सारे लोग हैं उसके इस वक्त भी, लेकिन वो उसके ऊपर जो है गौर नहीं करते। उसका एक ही ये है दर्द, वो है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कब जाऊंगा, मैं उपस्थिति में कब बैठूंगा, ताकि मुझे जो है सांत्वना मिले, ताकि जो ये दुनिया की चीज में कोई भी मुझे सांत्वना नहीं मिलती है। और बंद करने से पहले मैं और एक वचन भी पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता का जो है 63वां अध्याय। यहाँ पर भी जो है डेविड यहाँ पर वही वचन का उसी तरह का वचन बोलते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसुर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। और डेविड जान गया इस जीवन के दौर में कि कोई भी दूसरा चीज जो है उसकी जगह नहीं ले सकती, क्योंकि परमेश्वर जो है मूल्यवान है, उसने अपने बहुमूल्य जो है कीमत देकर हमें खरीद लिया है। जब हम ऐसे परिस्थिति में जाते हैं, हमें एक ही बात याद रखना है दोस्तों, हम जो परमेश्वर में कितने जो है श्रीमंत है, और परमेश्वर ने हमें जो है स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। कई बार हम स्थितियों में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को दिशा देते हैं, परमेश्वर इस तरह करेगा तो कैसा रहेगा, इस तरह करेगा तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को अपना काम करने के लिए बोलना चाहिए। परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करके जाना चाहिए। जब हम धन्यवाद दे के जाते हैं उसके उपस्थिति में, तो जो कुछ भी हम संकट जो है वो सब कुछ जो है एकदम विफल एकदम गायब हो गया रहते वहां से। तो इस तरह जब हम जाएंगे तो हम जो है उसके उपस्थिति का पूरा आनंद ले सकते हैं, और जो है जो कुछ भी नकारात्मक चीजें जो आई है हमारी जिंदगी में वो सब विपरीत हो जाएगा और वो सब गायब हो जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं, इस संदेश को यही खत्म करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन को, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू महान है, तू ना त्यागने वाला हमारा परमेश्वर है। तूने हमें अनंत काल के लिए प्रेम करने का वादा किया है। तूने वचन में ये भी लिखा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज के नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा।
बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। Okay, good evening, church, and welcome to our midweek service. नमस्ते दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है इस मिडवीक सर्विस Okay, में। we'll have a beautiful message. बहुत ही खूबसूरत संदेश Okay, रहेगा। turn in our Bibles to Exodus chapter 19, निर्गमन का 19वां अध्याय and खोलेंगे we'll read a couple of verses और there. 2 वचन हम पढ़ेंगे। Okay, it says, "You shall set bounds for people all around. और तू लोगों के लिए चारों ओर बड़ा बांध देना, Take heed to yourself और जो है तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो that you do not go to the mountain or touch its base. और उसकी सीमा को भी ना छुओ, Whoever touches the mountain shall surely be put to death. और जो कोई भी पहाड़ को छुए वह निश्चय ही मार डाला जाए। Not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with an arrow." उसको कोई हाथ ना छुए, और जो छुए उस पर पथराव किया जाए और उसे तीर से छेदा जाए। Whether man or beast, he shall not live. When the trumpet sound long, they shall come near the mountain. चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। Okay, Isaiah chapter 6 यशायाह का 6वां अध्याय and verse 3. और वचन 3, Okay, actually verses 1 actually. वचन 1 से हम In the पढ़ेंगे। year the king Uzziah died, जिस वर्ष उज्जियाह मर गया, I saw the Lord sitting on a throne मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, and lifted up, and the train of his robe filled the temple. और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। And the verse 3. वचन 3, And one cried to another and said, "Holy, holy, holy is the Lord of the hosts." और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। Verse 5. वचन 5, Woe is me, Isaiah said, I am undone, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, because I am a man of unclean lips. क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, I dwell in the midst of people of unclean lips. और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता For हूँ, my eyes have seen the King, the Lord of the hosts. क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा के महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। Wow, this is beautiful, isn't it? खूबसूरत है ना? Verse 8. वचन 8, I heard the voice of the Lord saying, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, Whom shall I send? मैं किसको भेजूं, And who will go for us? और हमारी ओर से कौन जाएगा? Then I said, Here am I, send me. तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। Okay, and Hebrews chapter 4 verse 16. और जो है इब्रानियों का 4:16, Okay, so let's just one verse and then we go into the message. It says, "Let us therefore come boldly through the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." इसलिए आओ कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Okay, Chandra, can you pray for the message? आइए संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। प्रभु तू हम पास्टर किशोर को अभिषेक कर और हमारे द्वारा हम सब से बातें कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. Okay, I was just thinking today. और आज मैं सोच रहा था, Okay, starting today. और आज से हम शुरू करने वाले हैं Okay, a wonderful series. बहुत ही अच्छा संदेश का श्रृंखला, Okay, on every midweek service. और हर एक मिडवीक सर्विस में हम, Okay, so the title will be Knowing God. और इसका संदेश का शीर्षक ये रहेगा कि परमेश्वर को जानने। Okay, what we'll do in this series is we will learn the attributes of God. और यही हम देखेंगे, परमेश्वर का गुण को हम सीखेंगे। And this is beautiful. ये बहुत ही खूबसूरत है। Okay, beginning today we will cover one of the greatest attribute of God is holiness. और आज से हम शुरू करेंगे परमेश्वर का एक बहुत भी अच्छा गुण, वो जो है परमेश्वर की पवित्रता। I was studying this story of Leonardo da Vinci. और मैं जो है लियोनार्डो डा विंसी का कहानी पढ़ रहा था। Okay, he is the guy who painted that famous picture of the Lord's Supper. उसने वो एकदम फेमस चित्र को जो है पेंट किया है, जो
आखिरी भोजन परमेश्वर यीशु मसीह And कर when रहे he थे। faces, when he drew many things in that painting, वो डा विंची ने जो है पूरा चित्र को जब पूरी तरह पेंट कर लेते हैं, okay, when it came to the faces of the people, जब जो है लोगों का जो है चेहरे के चित्र को पेंट किया जाना रहता है, okay, he didn't feel himself worthy to paint. वो जो है अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि उस चित्र को वो कर सकते हैं। You know, when he came to paint the face of Jesus Christ, जब जो है उसे मालूम पड़ा कि यीशु मसीह का अभी जो है चित्र को उसे पेंट करना है, he held it off. वो जो है रुक गया, He said, for a moment he paused, और जो है एक पल के लिए वो रुक गया, and many say that he paused for a long time. और बहुत लोग बोलते हैं बहुत टाइम के लिए वो रुका He हुआ was unwilling to approach it. और जो है उसकी तरफ जाने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा था। And then finally, because of the completion of the painting, लेकिन आखिरी में उसे एक पेंटिंग खत्म ही करना था, he just painted quickly and let it go. और वो जो पेंट किया तुरंत और फिर बाद में छोड़ दिया। Then these are the words he said. और ये शब्द उसने बोले, There is no use, he said. और ये इसका कोई मतलब नहीं है, I can't paint Jesus. मैं जो है यीशु को चित्र में नहीं डाल सकता हूँ। And I feel the same when I consider and the thought of holiness. और जब मैं भी वो उसी तरह सोचता हूँ, जब एक जो है परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सोचता हूँ, I तो suppose the hardest thing about God मैं जो है सबसे मुश्किल काम ये होते तब परमेश्वर के बारे में to comprehend His holiness. कि परमेश्वर की पवित्रता के बारे में वर्णन करने के लिए। This is beautiful, isn't it? खूबसूरत है ना, Like God's most fundamental attribute is holiness. कि परमेश्वर का सबसे बड़ा महान गुण ये है कि वो पवित्रता, Okay, it's the only attribute that is elevated in the third degree in the Bible. और यही जो एक गुण है परमेश्वर का श्रेणी में देखा जाए तो तीसरी श्रेणी में आते पवित्रता। Okay, we don't read in the Bible powerful, powerful, powerful. और हम बाइबल में ऐसा नहीं पढ़ते सामर्थी सामर्थी सामर्थी, ऐसा नहीं पढ़ते। No, but we hear the word holy, holy, holy is the Lord of God of the hosts. हम लेकिन यहाँ पर ये वचन में ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर पवित्र 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 परमेश्वर In पवित्र, Isaiah chapter 6 verse 3. और यशायाह का 6:3 में हम पढ़ते Okay, हैं। so the whole earth is filled with God's glory. और पूरा जो धरती जो है परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ I है। was thinking, what is holiness? और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है। Okay, holiness means that God goes beyond all our imaginations. जो पवित्रता का मतलब हम जब परमेश्वर जो है इस हमारे कल्पनाओं से भी परे चले जाते हैं पवित्रता। Okay, what is holiness? Simply is this, like I have something I know about God. और जैसे कि पवित्र के बारे में मतलब क्या है, मुझे कुछ तो मालूम है पवित्र के बारे में कुछ तो, But when I look at God's holiness, it goes beyond my imagination. लेकिन मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मेरी कल्पना से बहुत ही दूर चले जाते Like हैं। the painter who was painting that picture. जैसे कि वो चित्रकार वो चित्र बना रहा था, When he started, he had a kind of imagination about the picture of Jesus Christ. जब उसने वो चित्र को बनाने के लिए सोचा तो उसके बारे में यीशु मसीह के बारे में कुछ तो कल्पना थी। But as he was coming closer to paint the picture, जैसा वो नजदीक आ रहा था वो चित्र को समाप्त करने के लिए, like he couldn't imagine. और वो सोच नहीं सका फिर, He said, I can't put God in a picture. और वो बोला कि मैं जो ये परमेश्वर को चित्र में नहीं डाल सकता। And this is thought to be considered today. और ये ख्याल आज सोचने के लिए बहुत ही उत्तम है। Holiness is the fundamental character of fundamental God's character. और पवित्र जो है परमेश्वर का एक महान गुण है। Okay, it's one of the important qualities or one of the important characters of God. और ये जो है एक महत्वपूर्ण जो है परमेश्वर का गुण है पवित्रता। R.C. Sproul once said, R.C. स्प्रॉल एक बार बोला, the word holy calls attention to all that God is. और जो पवित्रता जो शब्द है जो भी परमेश्वर है वो सब में आती है। Okay, like holiness is blend with everything that God is. जैसे कि पवित्रता वो सब में समाई है जो परमेश्वर है। Okay, for example, His love is a holy love. और जैसे कि उदाहरण के तौर से उसका प्रेम जो है वो पवित्र प्रेम है। His justice is a holy justice. उसका न्याय जो है वो भी पवित्र है। His mercy is a holy mercy. उसका दया भी जो है वो भी पवित्र है। His knowledge is a holy knowledge. उसका ज्ञान भी जो है
है वो भी पवित्र है, His spirit is the Holy Spirit. और उसका आत्मा जो है वो भी पवित्र आत्मा And है। it's beautiful to consider. और ये खूबसूरत ख्याल है सोचने के लिए, Okay, God is holy. क्योंकि पवित्र परमेश्वर In पवित्र every है, aspect of God, God's purity is there. और हर एक चीजों में देखा जाए तो परमेश्वर की पवित्रता है। And God deals with everything in his characteristics in holiness. और हर परमेश्वर हर एक चीजों में जो है अपनी पवित्रता डालता है। How did God reveal his holiness in the Old Testament? और किस तरह जो है परमेश्वर ने पुराना नियम में अपनी पवित्रता को दर्शाई। Okay, we just read a passage here. और अभी हमने वो जो वचन हमने God पढ़े, told Moses, और परमेश्वर ने मूसा को बोला who went up on the mountain to meet God, कि वो परमेश्वर को मिलने के लिए मूसा पर्वत के ऊपर जाता है, and God told, tell everybody और परमेश्वर ने मूसा को बोला, सबको बोलो that step away from the mountain. और जो है पर्वत से दूर रहो कभी भी। No, I want to have a distance between me and man. और मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे और मनुष्य के बीच में दूरी हो। No, we cannot have a direct contact. और हम जो है परमेश्वर से डायरेक्ट एकदम एक साथ नहीं मिल Like सकते। even Moses was able to see God, like not even Moses was able to see God directly. और मूसा भी जो है परमेश्वर को एकदम आमने सामने नहीं देख सकता, Though he was given special privilege, और उसको एक खास अधिकार दिया गया है। God said, परमेश्वर ने बोला, Moses, मूसा go tell people, और जाकर मेरे लोगों को बोलो stay away और दूर रहो or you'll be killed. या फिर आपको मार दिया I was जाएगा। thinking like why God did this. और मैं सोच रहा था क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, God was saying, I'm too holy. और परमेश्वर बोलते हैं कि मैं बहुत ही पवित्र हूँ, Like a sinner cannot reach God by his own. कि एक पापी व्यक्ति जो है अपने आप से जो है पवित्र परमेश्वर के If पास नहीं आ any सकता। man has to reach God, और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आना चाहता है, he could only reach through a mediator. और वो कभी भी एक मध्यस्थी के द्वारा ही वो In the परमेश्वर Old के पास आ Testament, the nation of Israel cannot have a direct contact with God. पुराना नियम में इसराइल जो है डायरेक्टली परमेश्वर के पास नहीं जा God सकते, chose Moses. और परमेश्वर ने मूसा को God चुना, chooses prophets. परमेश्वर ने जो है नबियों को They were चुना, the spokesmen of God. और वो जो है वार्ताहर थे But thankfully today we have a mediator. तो आज हमारे लिए धन्यवाद की बात ये है कि हमारे पास एक मध्यस्थी करने Jesus said, I वाला am the way, the truth and the life. और यीशु ने बोला मैं ही मार्ग सत्य जीवन, Nobody could come to the Father except through me. और कोई भी मेरे सिवा पिता के पास नहीं आ Today सकता। so many religions want to reach God by their own. तो आज बहुत से धर्म जो है अपने कर्मों के द्वारा जो है वो जाना चाहते हैं Because they परमेश्वर do के पास, not know how holy God is. क्योंकि वो नहीं जानते कितना परमेश्वर They पवित्र think है, they can make God in their own image. और वो ऐसा सोचते कि वो अपनी कल्पनाओं में अपने तरह ही Like परमेश्वर this बना artist सकते। cannot paint the picture of Jesus Christ. जैसे कि ये चित्रकार जो है वो अपने आप से यीशु मसीह का चित्र नहीं बना सकते, Okay, we can't make God. और हम जो है परमेश्वर को नहीं बना सकते, Because God's holiness is beyond man's imagination. क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्रता जो है मनुष्य के कल्पना से बहुत ही परे That's why है। Jesus, God sent Son, और इसीलिए परमेश्वर ने उसका बेटा को भेजा so that He could be a mediator for man. ताकि वो मनुष्य के लिए मध्यस्थी बने, So that through Jesus we could enter heaven. ताकि उसके द्वारा जो है हम स्वर्ग में जाए। That's beautiful. खूबसूरत है, That's amazing. ये बहुत ही Because अद्भुत, God is holy, क्योंकि परमेश्वर पवित्र but है He is also loving. और वो बहुत ही प्रेमी He है, loves us so much. और वो इतना हमसे प्रेम He करता है, loves us so much that He wants to have a fellowship with the sinner. वो इतना हमसे प्रेम करता है कि हमारे साथ वो पापी के लोगों के साथ संगति बना But the करते हैं। sin separates God. लेकिन पाप जो है मनुष्य से अलग करती In है। Habakkuk 1, Bible says, like God cannot look upon sin. हबक्कुक का पहला अध्याय में बोलते हैं परमेश्वर जो है पाप की तरफ देख भी नहीं There's सकता, no way that God could meet man. लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं कि परमेश्वर जो है ऐसा आ सकता है। Because holiness would destroy man. और क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्रता जो है मनुष्य को नाश कर सकती है, That's why God sent Jesus. और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा, That whoever believes upon Him. कोई भी सिर्फ विश्वास करेगा उसके ऊपर। And we come to God today. और हम जब परमेश्वर के पास We आएंगे can आज, come to the throne of God today. और जो है परमेश्वर के सिंहासन के पास आ सकते हैं हम Because आज of Jesus. यीशु मसीह की वजह से। Amen, isn't it? आमीन, है ना? Like God told Moses, कि परमेश्वर ने मूसा को बोला let your people know that they will not even touch the mountain. कि आपके लोगों को ये जान लो कि वो पहाड़ को छू भी नहीं सकते। God was serious with holiness.
holiness. अब परमेश्वर बहुत ही इसमें सीरियस है उसकी At पवित्रता one को time लेकर। later in the history, और आगे देखा जाए तो इतिहास like में 2 priests were killed, Nabal and Abihu. और 2 याजक लोग को मार डाला गया, नबाद और अबीहू। Okay, they went into the temple. और They वो- went into the tabernacle. वो जो है परमेश्वर की वेदी के अंदर गए And they offered a strange fire. और वो जो है ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही वहां पर जाके जो है आग जलाए। Many scholars believe बहुत से स्कॉलर लोग मानते हैं that they offered a fire by their own instead of taking the fire from the brazen altar. याद रखिए याजक को जो है वो वेदी से जो है आग लेकर जाना है, लेकिन वो लोग अपने आप से जो है वो आग लगाई। And God destroyed them परमेश्वर ने वहीं पर नाश कर दिया because they took the God very in a familiar way. और क्योंकि वो लोग जो है परमेश्वर को बहुत ही आसान तरीके से ले लिए Okay, God judged them by a quick death. और जो है परमेश्वर ने न्याय किया, वहीं पर वो लोग मर The गए। magnitude of sin of these 2 priests, और जो है जो इनका जो पाप का जो क्रम है okay, is calculated by the greatness of God's holiness. और जो है उसका वर्ण उसका जो तुलना जो है परमेश्वर के पवित्रता से किया गया Okay, है। of course they committed sin, हाँ उन्होंने पाप किया है but they committed sin against the holy God. और उन्होंने पवित्र तो परमेश्वर के खिलाफ जो है पाप This किया is amazing thought है। ये today. अद्भुत ख्याल है। Like we say, like anybody commits like something against the highest authority, और जो कोई भी अगर पाप करते कोई भी ऊंचे अधिकारी के खिलाफ they will be judged doubly. और उनका जो न्याय दुगना होती है। Okay, in the same way God says, my holiness is so high. और उसी तरह परमेश्वर बोलते हैं मेरी पवित्रता इतना ऊंचा है। And that's amazing, isn't it? ये बहुत ही In the same way God, this is the way God deals with God's men too. और उसी तरह परमेश्वर इसी तरह डील करते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ। Sometimes we are amazed, कई बार हम बहुत ही अद्भुत हो but जाते this is हैं how God does it. और इसी तरह लेकिन परमेश्वर करते Because हैं we can't take the things of God in a familiar manner. क्योंकि ने परमेश्वर का चीजों को जो है हम आसान तरीके से अपने हाथों में नहीं ले सकते। And another story was Uzzah और एक कहानी में हम उज्जा को देखते was हैं struck down by God for touching the ark of God. और जो है परमेश्वर वहीं पर उस उज्जा को मार डालते हैं क्योंकि उसने परमेश्वर का वेदी को हाथ लगाया। Okay, they were taking the ark of God on the oxen. और जो है वो वेदी को जो है उस बैलगाड़ी में रखकर लेके जाते And रहते when they came to a place called Chitan, और वो ऐसे जगह पे आते हैं चितान जगह पे। Uzzah reached out his hand to steady the ark because the oxen were stumbling. क्योंकि जो है बैलगाड़ी लड़खड़ा रहते हैं तो उज्जा जो है हाथ लगाते ताकि वो वेदी ना गिरे। We read the Lord's anger burnt against Uzzah and he struck him down because he put his hand on the ark. बाइबल में लिखी गई कि परमेश्वर ने जो है उज्जा का इस कार्य के लिए परमेश्वर वहीं पर उसे मार डाला जाता है So he died before the Lord. कि परमेश्वर के सामने वो मर जाते हैं। Once again we confront the harshness of God. और यहाँ पर परमेश्वर का हम देखते हैं कठोरता को। What was the reason that Uzzah was struck down? क्या कारण है उज्जा को जो है मार डाला गया I वहाँ was studying about this. पर? और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। Okay, Uzzah was a Kohathite और उज्जा जो है कोहताइट है who had been schooled in specific instructions और उसे जो है खास पढ़ाई दी गई है इस क्षेत्र में how to handle the ark and how to be carried. और किस तरह वेदी को पकड़ना है और किस तरह लेकर जाना है। Under no conditions was anyone ever to touch the ark. और कोई भी इसमें कंडीशन में जो है कोई भी वेदी को हाथ नहीं लगा सकते। Once it is constructed and dedicated to God, it becomes holy. और एक बार जो है वो उस वेदी को बनाया गया फिर परमेश्वर को अर्पित किया तो वो पवित्र बन जाती है। Okay, only they have to touch it through the poles that are attached to the ark. सिर्फ जो है वेदी को जो है उस लकड़ी को जिसपे उसके द्वारा बांधी गई रहती है उसको ही हाथ लगाया जा सकता And है। they're not supposed to be tied to the ox. और जो है वो सॉरी They're not supposed to be taken on an ox cart. और जो है उस बैलगाड़ी में भी उसे लेकर नहीं जा सकते। Okay, when the tabernacle was carved in the Old Testament, और जो है वो उस वेदी को जो है बनाया गया था पुराने okay, नियम में the ark was covered with the veil, और जो है उस वेदी को जो है वो जो है पूरी तरह कवर किया गया so था that the priest could not even look upon the ark. तो ताकि वो याजक भी जो है उसके अंदर नहीं देख सकते। But Uzzah assumed लेकिन उज्जा को जब वो मालूम पड़ा that it's okay to ignore the instructions. वो बोला कि ठीक है ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। Okay, and because the ark was about to fall,
into the ground. और जो है आग क्योंकि लिए जो है वो वेदी जो है जमीन पे गिरने वाली थी। Remember, he thought he will save the ark. वो सोचा कि वो वेदी को बचा लूंगा। It was not an act of heroism. और जो है वो सोचा कि इसमें मैं कुछ कीर्तिमान हासिल कर लूंगा। It was an act of arrogance. लेकिन वो इसमें जो है उसकी सोच समझ में आती है। Okay, Uzzah assumed his hand is less polluted than the earth. उज़ा सोचा कि वो जमीन से कम है मेरे पाप He felt that his hands are holy than it falling down on the earth. वो सोचा कि मेरे हाथ जो है वो कम पाप है उस जमीन पे पड़ने से But अच्छा। God didn't want his holy throne touched by that which was contaminated by sin. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस पाप भरा गंदे हाथ से वो छुआ जाए। I built this message on this thought. मैं इस संदेश को इसलिए इस ख्याल से बनाया हूँ Like God didn't want anybody to touch the ark of God with his sinful hands. और क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि उस पापी हाथों से कोई भी उस वेदी को ना छुए। That's amazing. ये Did अद्भुत you है। ever thought about that thought? क्या आप कभी एक ख्याल सोचे हैं क्या Like God is so holy. कि परमेश्वर इतना पवित्र है Like no man can enter heaven and touch the throne of God. कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में जाकर उस वेदी को नहीं छू सकते। That's खूबसूरत a है, beautiful thought. खूबसूरत ख्याल है ये Like God was defining or telling them how holy he कि was. परमेश्वर यहाँ पर दर्शा रहे कितना वो पवित्र है। This is a thought to be considered today. ये ख्याल हमें सोचते रहना चाहिए आज। Okay, because when we miss out the holiness, क्योंकि जब हम पवित्रता को जो है खो देते then we take it everything in a very familiar manner, तो हम सब चीज को जो है बहुत ही जाना पहचाना आसान and तरीके that से will लेने be की very dangerous. और फिर ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। And we see how God dealt things in the Old Testament. जब हम देखते हैं पुराने नियम में किस तरह परमेश्वर ने इसका कार्य किया है। Sometimes we think God has just as the age is gone, he's become a little mild. कई बार हम सोचते हैं जैसे जैसे काल बीत गया वैसे सब परमेश्वर जो है धीरजवान होते गए। In the Old Testament, there were at least 12 different sins that God commanded death sentence. और पुराने नियम में देखा है तो 12 ऐसा पाप है परमेश्वर उसके लिए बोलते हैं इसको मार डालो। For example, और उदाहरण के cursing तौर of parents. से और जो है Cursing of parents is death penalty. और जो है माँ बाप को शाप देना मतलब उसको सीधे मार डालना। Adultery is a death penalty. व्यभिचारी उसको भी मार डालना। Homosexuality, death penalty. समलैंगिक रिश्ते उसको भी मार डालना। But we see in this world that we are living today, और लेकिन आज हम इस दुनिया में जहाँ पर हम देखते these हैं sins are committed without fear. और ये पाप जो है बिना डर के लोग करते हैं And we don't see the judgment of God on these people. और हम देखते हैं कि उनके ऊपर कोई भी न्याय नहीं हो रहे परमेश्वर And की तरफ से। oftentimes this question pops up in our minds. और कई बार ये सवाल हमारे दिमाग में आ जाता Is the है God of the Old Testament particularly angry? क्या परमेश्वर पुराने नियम का वो तभी सिर्फ गुस्से वाला था? Okay, the God of the New Testament is loving and kind. क्या नया नियम का परमेश्वर वो जो बहुत ही प्रेमी और धीरजवान? Is Christian worships two different gods? क्या ये ईसाई लोग जो है दो अलग परमेश्वर का पूजा करते No हैं? and no and no is the answer. नहीं God is the same. Malachi chapter 3 verse 6 says, परमेश्वर जो है वही है। मलाकी का 3:6 में बोलते हैं I am the Lord, I change not. मैं वो परमेश्वर हूँ कभी नहीं बदलता। I am the God of the Old Testament, I am the God of the New Testament. मैं पुराना नियम का परमेश्वर वही हूँ और नया नियम का भी But परमेश्वर। what God did in this New Testament, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है in इस नए नियम में? this era, is choose to postpone the judgment. और इस काल में जो है परमेश्वर ने जो है न्याय को आगे बढ़ाया है। Today, men and women given opportunity to repent. तो आज जो है मनुष्य लोगों को जो है पाप का प्रायश्चित करने के लिए मौका दिया Today, गया। God has given men and women an opportunity, like save them from immediate judgment. और जो है आज मनुष्य को जो है उस न्याय से जो है मौका दिया है ताकि उससे बच सके। But one day, at the end of the time, लेकिन एक दिन जब काल खत्म होगा His holiness is unchangeable will be revealed. और उसका जो पवित्रता जो है वो दिखाया जाएगा। जो Those who put their faith in Christ would be saved. और जो उसके पर विश्वास करते हैं वो बचे जाएंगे। They will be saved from the wrath and also they escape from the coming judgment. और जो है वो लोग जो है वो उसके परमेश्वर का कोप से भी बचेंगे और न्याय से भी God is बचेंगे। saying, now I have given you a son. और परमेश्वर बोलते कि अभी मैं तुम्हारे लिए बेटा को दिया हूँ। 2000 years back I sent a son.
2000 साल पहले मैंने बेटा को भेजा है No, I want you to receive him और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ग्रहण so करो that you have an access to me. ताकि जो है तुम्हारे पास वो अधिकार रहे I मेरे पास delayed आने the के। judgment. मैं जो है न्याय को जो है बहुत ही I'm giving opportunity for you to repent. और मैंने देरी की है न्याय को ताकि तुम पाप से I am not a God who changes. मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूँ कि मैं बदलता हूँ I'm the same yesterday, today and forever. और मैं वही परमेश्वर हूँ, कल आज और हमेशा के लिए वही। But today I'm giving you an opportunity. लेकिन मैं आज मौका दे रहा हूँ आपको That's what God is telling to this world. और वही परमेश्वर जो है पूरा दुनिया को बोल रहा है। That's beautiful. खूबसूरत है, God is holy. परमेश्वर पवित्र है। I was thinking in closing. और मैं बंद करने से पहले सोच रहा था We often emphasize the grace of God. और हम हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह को ऊंचाई स्तर में लेते हैं Okay, but even in our ministry, और हमारे सेवकाई में we भी call ourselves greater grace. और हम अपने आप को ग्रेटर ग्रेस बोलते हैं Okay, we emphasize so much on the grace. और हम अनुग्रह के ऊपर ज्यादा देखते हैं, पढ़ाई But करते we हैं, cannot understand the wonder of grace लेकिन हम जो है वो अनुग्रह के बारे में अद्भुतता को नहीं देख सकते until we overwhelmed by His holiness. जब तक हम परमेश्वर की उस पवित्रता को नहीं समझेंगे। This is beautiful, isn't it? खूबसूरत है। Until we know how holy God is, और जब तक हम लोग ये नहीं जान लेंगे कितना परमेश्वर पवित्र है we cannot enjoy the wonders of grace. और जो है हम परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसका मजे नहीं ले I want to सकते। leave you with two principles. मैं दो ख्याल बोल के, दो सिद्धांत बोल के बंद Number करूंगा। one, पहली बात, when Moses saw God's holiness, जब मूसा ने जो है परमेश्वर का पवित्रता को देखा, it could not stop him from going to God again and again. और ये जो मूसा को जो है रोका नहीं गया कि वो परमेश्वर के पास मिलने के लिए फिर से बार बार जाने लगा। There is a woman in the Bible, Mary Magdalene. और मेरी मैगदलीन करके बाइबल में औरत है। Luke chapter 7, Jesus healed her from 7 demons. और लूका का 7वां अध्याय में देखते हैं इस मैरी मैगदलीन को, उसको जो है 7 दुष्टात्मा से परमेश्वर ने जो है चंगाई दी। She knew what was evil. और उसे मालूम था कि दुष्ट क्या है She knew what was sin. और उसे मालूम था कि पाप क्या है And she also knew how holy God और was. उसे ये भी मालूम था कि परमेश्वर कितना पवित्र You है। see, her life is very unique life. और उसका जो है अद्भुत जीवन को देखते हैं हम। The time she was healed, जिस वक्त से उसे जो है चंगाई when मिली, she experienced the holiness of God, जब उसे परमेश्वर की पवित्रता को उसने महसूस किया she understood the wonder of grace. और जो है उसने जो है परमेश्वर का अनुग्रह को महसूस किया And she never left Jesus. और उसने कभी भी यीशु को नहीं She छोड़ा went on with God. और वो जो है जाती रही परमेश्वर Even के पास। after he died and was buried, she was there, the first one to be at the tomb. और उसे यीशु को मार डाला गया, कब्र में रखा गया, तो कब्र में पहुंचने वाली पहली औरत भी वही थी। Okay, when we see God's holiness, जब हम परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं we can't be stopped. और हमें जो है रोका नहीं जा सकते Okay, we go. और हम जाएंगे, We go. हम जाते It रहेंगे। says Moses went up to God in Exodus chapter 19 verse 3. और जो है निर्गमन का 19:3 में बोलते हैं मूसा गया उस पवित्रता Moses approached God again in Exodus chapter 20 verse 21. और जो है 20वां अध्याय में भी देखते हैं परमेश्वर के पास फिर से गया Okay, मूसा। the more we know the attribute of God's holiness, जितना हम परमेश्वर के पवित्रता का गुण को जान लेंगे we want to be in His presence. और हम उसके उपस्थिति में We रहना चाहते long हैं। to be in His हम presence. जो है उसके लिए जो मौका देखते No, we हैं long to be reading the Bible. और जो है हम मौका देख के बाइबल भी Because पढ़ते when we हैं read the Bible, we are taken into the presence of God. क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की When we पवित्रता pray, we go into the throne room of grace. और जब हम जो है प्रार्थना करते हैं और वो उस सिंहासन के सामने When we रहते हैं, come into the body, we know like Jesus walks in the midst of the churches. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है परमेश्वर चर्च के बीचों बीच आता है। Imagine the Holy One of God. सोचिए जो पवित्र परमेश्वर He is walking in the midst of the church. और वो जो है चर्च के बीचों बीच चल रहे हैं। And when we come into the churches, और जब हम चर्च में आते हैं we don't come with familiarity. हम जो है ऐसे जाना पहचाना We come with reverence. हम जो है आदर और सम्मान No, के we साथ wait, God. और जो है हम इंतजार करते हैं God, you are holy. परमेश्वर तू पवित्र Show है us how sinful we are. और हमें बताइए हम कितना पापी है And we worship God. और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना We करते worship God. हैं और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं That's what holiness can do in our lives. और यही परमेश्वर की पवित्रता कर सकती है हमारे जीवन में। Number 2, दूसरी बात, the closer we get to God, जितना हम परमेश्वर के करीब जाते हैं the greater our sins appear.
और कितना हमारा पाप भयानक है वो बताती है। And the greater our sins, और जितना बड़ा हमारा पाप है the greater our need for mercy. और जब उतना ज्यादा बढ़ जाती है हमारे लिए दया। The woman in John chapter 8, और जो यूहन्ना का 8वां अध्याय में वो व्यभिचारी स्त्री को हम देखते okay, हैं। Jesus said, whoever has not sinned, throw the first stone. और यीशु बोलते हैं कि कोई भी अगर पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठा के What did मारेगा। Jesus say by saying that? और यीशु को उसका बोलने का मतलब क्या था? That means whoever has not sinned are permitted to stay here. Are not permitted. Whoever has sinned are not permitted to stay here. उसका मतलब क्या है? जो भी अगर पाप किया इसका मतलब कि वो यहाँ पर नहीं रहे। Whoever didn't sin would stay here. और अगर कोई पाप नहीं किया वो यहाँ पर Only he is qualified to stone her. और सिर्फ वही वो सिद्ध व्यक्ति था कि वो उसे मार I want you to imagine this scene. मैं चाहता हूँ कि कल्पना कीजिए The woman is a victim, और जो ये औरत जो है वो दोषी है and the people who bought her were all the people who said like she's done something wrong. और जो लोग इस औरत को लेकर आए थे वो बोले कि ये औरत ने गलत काम And the किया। third person is Jesus और Christ. तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह है। And imagine the scene there. यहाँ पर ये चित्र के बारे में Jesus कल्पना says some कीजिए। powerful words here. यीशु जो है बहुत ही सामर्थ्य Whoever has not sinned, कोई भी अगर पाप नहीं throw किया the first stone. पहला पत्थर वो मारे। And it says everybody left. और वो बोलते कि सभी लोग वो जगह से निकल गए। Only two people are left. दो लोग ही सिर्फ वहाँ पर बचे। One who is qualified to throw the stone, एक जो है वो जो पत्थर मारने का लायक था and another one is a victim. और दूसरा जो दोषी व्यक्ति। And the woman is waiting there, और वो औरत वहाँ पर खड़ी है expecting to throw the stone from Jesus. और ऐसा सोच रही कि यीशु मसीह अभी उसे पत्थर मारेगा। But Jesus says, लेकिन यीशु बोलते हैं neither I condemn you, sin no more. मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जाकर तुम अभी से पाप मत Imagine what would have happened to that woman. करो। सोचिए उस औरत के जीवन में क्या होगी रही Like Jesus was the only one qualified to throw the stone. कि यीशु ही ऐसा सिद्ध व्यक्ति था कि वो उसके पर पत्थर मार सकता था। You know what? She understood how holy God is, और उसे मालूम पड़ा कि कितना परमेश्वर पवित्र है and also how loving He is, और कितना वो प्रेमी परमेश्वर and how है gracious He is. और कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर You है। know what? When like that's what Hebrew writer says. और इसीलिए इब्रू का लेखक बोलते हैं Come boldly, और हिया बांध कर आओ come boldly to the throne of और God. हिया बांध कर आओ परमेश्वर के सिंहासन के Why? सामने। Because now we have access. क्यों? क्योंकि अभी हम सीधे जा सकते हैं। Doesn't matter what you did. कि इसका परवाह नहीं कि हमने क्या किया। Doesn't matter what is your qualifications. और इसमें कोई ये नहीं रखते कि हम कौन हैं। Okay, doesn't matter where you've been. और ये भी परवाह नहीं करते कि हम कहाँ पर थे, Okay, what mistakes you did. कि कौन सा गलती हमने की है। But you know what? Come boldly because of Jesus. You have an access. Amen for that. क्योंकि यीशु मसीह इसके लिए जो है हिया बांध कर आओ। आमीन चर्च। That's amazing. We have an access because of हम Jesus. जा सकते हैं धैर्य से। The more we see the holiness of God, जितना हम जो है परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं like we come to God. Why He is telling us to come to the throne of God? और क्यों हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने आना है। Okay, when we come there, we see the holiness of God, और जब हम आते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता को देख सकते and हैं we also see ourselves how sinful we are, और हम ये भी देखते हैं कि हम कितना पापी हैं and we would know how much we need mercy. और हमें मालूम है कि कितना हमें अभी दया कर You know, सकते हैं। those people who doesn't go to the throne of grace, और जो लोग जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं जाते they are always judging. वो हमेशा जो है न्याय करते But रहते हैं। those who are at the throne of mercy, लेकिन जो दया का वो ये सिंहासन के पास जाते they are हैं always gracious. वहाँ पर हमेशा जो है उनके पर न्याय Okay, don't be a person far away from the throne of God. और लेकिन जो है वो दूर मत भी रहिएगा कि वो अनुग्रह का सिंहासन से Okay, come boldly कि एकदम हिया बात so कराए that you would know that I need mercy. कि हमें मालूम है कि हमें हम पर When a दया person who receives दया mercy is willing to give grace to somebody, और जिसको दया मिला है वो जो है तैयार रहते हैं कि अनुग्रह दे दूसरों को and God says, I'll give you grace in the time of need. और परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा जब जरूरत है In आपको। closing, बंद करने से in पहले Isaiah chapter 6, और यशायाह का 6वां अध्याय okay, Isaiah served a king. ऐसे जो है वो उस राजा का सेवा किया He did everything for him. और सब कुछ किया उसके Like he लिए became an idol in his life. और वो जो है उसके लिए मूर्ति बन गई थी And one day that king died. और एक दिन वो राजा मर गया। He died. वो मर गया He was just a king. और वो सिर्फ राजा था And God took him to the throne room. और परमेश्वर ने उसे वो सिंहासन के रूप में Because Isaiah was very down. और क्योंकि यशायाह जो है बहुत कमजोर था God shows him. परमेश्वर उसे दिखाते And he shows the angels. और वो उसे दिखाते कि वो स्वर्गदूत लोग He sees the vision of the angels singing holy, holy, holy. और परमेश्वर दिखाते कि वो स्वर्गदूत लोग पवित्र 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 ऐसा गाना गा रहे And the first thing that
utters from the mouth of Isaiah, और पहला चीज जो यशायाह का मुंह से निकलती है, woe is me, और मेरे पर हाय, I am sinful man. मैं जो है पापी व्यक्ति हूँ, I lived among the sinful people. और मैं जो है पापी लोगों के साथ रह चुका हूँ। But what's amazing is, लेकिन अद्भुत ये बात ये है, like God sends an angel to like touch his heart, touch his lips, और परमेश्वर जो है स्वर्गदूत को भेजता है ताकि उसका जुबान को टच करे, and he was cleansed from all sins. और उसे जो है पूरे उसमें से साफ And किया he जाता was है, amazed in the holiness of God. और वो जो है बहुत ही अद्भुत हो जाते हैं परमेश्वर की पवित्रता And में, in the midst of that holiness, और उस पवित्रता के बीचों बीच, he hears the voice, और जो है वो शब्द सुनते हैं, who shall go? कौन There's जाएगा? somebody talking in heaven. और कोई तो वहाँ पर बात कर रहे The हैं, स्वर्ग में। Trinity is talking. The Father, Son, and the Holy Spirit are talking. पिता पुत्र पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं यहाँ No, पर। they didn't say, they didn't choose who is that person. और उन्होंने ये चुनाव नहीं किया था कि कौन वो व्यक्ति जाएगा, You know, they were just talking, who shall we send? और वो बात कर रहे हैं कि किसको हम भेजें। And in the midst, that in the presence of holiness, Isaiah says, I shall go. उस पवित्रता के पूरे बीचों बीच में ऐसे बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। And that's so important thought today. ये बहुत ही अच्छा ख्याल है When हमारे, we understand the holiness of जब हम God, परमेश्वर के पवित्रता को समझ लेते हैं, we're willing to go far for God. हम जो है बहुत दूर तक परमेश्वर के लिए जाने के And लिए, Isaiah heard the voice of God. जब परमेश्वर का आवाज ऐसे सुन लिया, When we go into His presence, जब हम उसके उपस्थिति में जाते हैं, we see the specific word from God. और जो है हम परमेश्वर का वो शब्द सुनते हैं जो हम वो And we कहना say, चाहते हैं, yes Lord, I will go. और हम बोलते हैं परमेश्वर मैं करूंगा, मैं Use जाऊंगा, और मुझे इस्तेमाल करो। Oh, what a beautiful thought today. कितना अच्छा We'll ख्याल है, continue this thought again next week. और हम ये ख्याल को आगे और बढ़ाएंगे Let's अगले pray. हफ्ते। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Lord, we just thank you today. परमेश्वर आज हम बहुत Lord, we धन्यवाद pray for sick people and today in our church. और आज हम जो बीमार लोग हैं हमारे चर्च में उनके लिए खास प्रार्थना करें। Lord, we lift up today in a very special way. आज हम खास तौर से उनको आपके सामने लाते हैं Lord, प्रभु, we just pray for anybody who is down with sickness. और जो लोग जो है वाकई कमजोर है, वो बीमार है, उनके लिए खास Okay, प्रार्थना, whether physically or emotionally. और जो शारीरिक तौर से या भावनाओं में, Lord, we lift up today Kalandi. और हम कालिंदी के लिए खास प्रार्थना We करते just हैं, pray for our body today. और उसके शरीर के लिए प्रार्थना We करते pray that you remove every kind of infection from our हैं, और body. जो भी इन्फेक्शन उसके शरीर में उसे And निकाल touch दीजिए, your body today. उसके शरीर को छू And लीजिए प्रभु, heal it today. और उसे चंगाई दीजिए प्रभु। Lord, we also pray for myself today. और आज हम पास्टर किशोर के लिए प्रार्थना करते Lord, हैं, I pray that you heal my body और today. प्रभु उनके शरीर को छू लीजिए Quicken प्रभु, me today. और उसे जो है सामर्थ दीजिए प्रभु। Lord, we also pray that you keep our church from this virus. और जो है हम ये पूरे चर्च के मेंबर के लिए प्रार्थना करते हैं, इस वायरस से बचा के रहो, Lord, we pray. और हम प्रार्थना करते Lord, we हैं pray प्रभु। for Chandra even as he meets with many people. और जो है मेरे लिए भी, मैं जब बहुत से लोगों को मिलता हूँ Lord, प्रभु, we pray that you protect him, Lord. कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी सुरक्षिता में Lord, we रखो। pray for Kaveri's job today. कावेरी के काम के लिए भी प्रार्थना Lord, करते हैं please make a provision प्रभु, for और him. उसके लिए जरूरत पूरा कर प्रभु, उसे Lord, काम we pray for दीजिए। Manoj Patel today. मनोज पटेल के लिए भी Lord, प्रार्थना करते provide हैं, his needs today. और उसका जरूरत पूरा Pray कीजिए for प्रभु। Kiran today. किरण के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, Lord, touch his life today. और उसका जीवन को छू Think लीजिए। about Deepika today. दीपिका के लिए प्रार्थना Lord, करते his हैं प्रभु, children. उसके बच्चों के लिए Lord, प्रभु, we pray for Aparna. अपर्णा और उसके बच्चों के लिए भी Lord, प्रभु, Lord, and also Suma Shetty, Swati. सुमा शेट्टी और स्वाति उसकी बेटी के लिए Lord, प्रभु, we just pray that you will touch this people. और हम चाहते हैं कि इन लोगों को छू लीजिए Pray प्रभु। also for Suma Shetty for your protection as she handles the patients. और जो सुमा शेट्टी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो पेशेंट को देखभाल करती है, Lord, keep her. Pray also pray for the patient currently she is handling. और जो पेशेंट अभी जो जिसकी देखभाल कर रही है उसके लिए Selena प्रार्थना, Fernandez and Selena- Paul Fernandez. सेलिना फर्नांडिस और पॉल फर्नांडिस के लिए Lord, I प्रार्थना pray करते that you would just heal them. हैं, और हम प्रार्थना करते हैं उसे छू कर Pray चंगाई for their दीजिए प्रभु, salvation, Lord. और उनके उद्धार के लिए भी प्रार्थना Lord, we करते pray हैं for प्रभु, Garima today. और गरीमा के लिए भी प्रार्थना Lord, who's करते हैं। in UP, pray for her, touch her body. यूपी में है, उसके शरीर को छू लीजिए प्रभु। Lord, we pray for Max today. मैक्स के लिए प्रार्थना Lord, करते I हैं, pray as he is in a very important decision making. और आज हम प्रार्थना करते हैं वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करने वाले Lord, I हैं, pray give him wisdom. और हम प्रार्थना करते हैं उसे बुद्धि और ज्ञान दीजिए Lord, be with him today. और उसके साथ रहिए A प्रभु, young man, Lord, और bless जो him. जवान व्यक्ति है Pavan प्रभु, Yadav today. पवन यादव के लिए प्रार्थना Lord, करते for Christopher and Carol. हैं, क्रिस्टोफर और Pray कैरल for की प्रार्थना, Christopher's business, Lord. क्रिस्टोफर का कारोबार के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं open doors for him. प्रभु, उसके लिए द्वार खोलिए प्रभु, Lord, for Carol, for all that she does. और कैरल जो सब वो सेवकाई करती है प्रभु, Lord, bless her today, special way. उसे खास तौर से आशीष दीजिए Lord, प्रभु। thank you for all these people. धन्यवाद ये सारे लोगों Lord, के लिए thank प्रभु, you
pray for Jenny's healing. जेनी के लिए, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं Lord, pray for Newton even as he goes to work. न्यूटन जो काम पे जाते हैं प्रभु, Lord, protect him, Father. और उसे सुरक्षिता में रखो। Lord, we pray for Bipin and the family. विपिन और उसके परिवार के लिए प्रार्थना Lord, करते pray हैं for healing. उनकी पूरी तरह चंगाई Lord, के लिए pray for प्रार्थना करते provisions for हैं और them. उनके जरूरत पूरा कर प्रभु। Lord, we also pray for, Lord, we think about Maurya family. और हम मौर्य फैमिली के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, Lord, we pray for them to heal them. और हम प्रार्थना करते हैं कि उसे छूकर चंगाई दीजिए Lord, प्रभु। we thank you, you are our healer. और हम प्रार्थना करते हैं आप ही चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। Abhijit, Nisha, Samamitra. और अभिजीत, निशा, नेहा, इसके लिए प्रार्थना Lord, we करते just pray for them हैं और हम to give a breakthrough in their lives. उनके Lord, जीवन में छुटकारा दीजिए प्रभु। Lord, you are a good God. और आप भले Dilip, परमेश्वर, God, Dilip, pray. दिलीप के लिए भी प्रार्थना Lord, करते we हैं pray प्रभु, for Varsha today. वर्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं Thank you, Jesus. प्रभु। आज हम धन्यवाद देते Thank you. हैं Pray for our church today. और आज हम पूरे चर्च के लिए भी प्रार्थना Lord, करते I pray that as we look for a new church हैं hall, और हम प्रार्थना करते हैं जैसा हम नया हॉल के लिए ढूंढ रहे प्रभु, give us an opening. और आज हमें वो द्वार खोलिए प्रभु Lord, हमारे we लिए। pray for a office for our church, और जो ऑफिस चाहिए a हमारे चर्च के premises लिए, for Bible और college. जो बाइबल कॉलेज के लिए भी जगह Lord, चाहिए, open doors. Lord, open doors. और द्वार खोलिए प्रभु हमारे लिए। Lord, you have prepared for us. और जो हम आपके लिए हम Lord, give us तैयार, missions, Lord. और हमें सेवकाई दीजिए प्रभु, विशेष Lord, we दीजिए। pray for Jaspal and Sharabjit और today. जसपर और सरबजीत के लिए प्रार्थना Continue करते to हैं heal Sharabjit today. और जो है सरबजीत को पूरी तरह चंगाई दीजिए Lord, प्रभु। pray for them, their plans as they finish Bible college this October. और जो वो अभी बाइबल कॉलेज अक्टूबर में वो खत्म कर रहे Lord, हैं I pray that you be with them. और हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ तू बने रहे प्रभु, Lord, raise up funds for them. और उनके लिए जो है जो भी जरूरत आर्थिक मदद Lord, वो तैयार कर प्रभु। Lord, pray for new ventures in North India. और जो है नया कार्य जो नॉर्थ इंडिया में तू शुरू करने वाले हैं। Lord, provide all our needs, Jesus. परमेश्वर हर एक जरूरत की चीजें तू दे प्रभु, Lord, we increase our missions funds. और हमारा जो से मिशंस का जो फाइनेंस है उसे और बड़ा Lord, प्रभु। help us, Lord. प्रभु हमें मदद कीजिए Lord, प्रभु, it's your work, और Jesus. आपका ये काम है प्रभु, Lord, please help. और हम इसीलिए हमें मदद कीजिए Lord, प्रभु। we pray. और हम प्रार्थना करते Lord, हैं raise up laborers. और हम लोगों को तैयार कर प्रभु, Lord, raise up leaders in our और midst. हमारे चर्च में जो है अगुओं को तैयार कर प्रभु। Lord, we thank you. प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं Lord, we worship you. और आपकी स्तुति आराधना If करते you are हैं। here today, never believed in Jesus, अगर आप ये सर्विस देख रहे हैं, आपने कभी यीशु मसीह के बारे में you विश्वास can नहीं say किया, the simple prayer. ये साधारण सा प्रार्थना Say, आप Dear कर सकते हैं। Jesus, बोलिए, प्रिय यीशु, I am a sinner. मैं पापी हूँ, I believe मैं विश्वास करता that हूँ you died for me, कि आप मेरे लिए मर गए buried, और दफनाए and गए rose again. और आप फिर से पुनरुत्थान I हो गए। believe in you मैं आपके पर विश्वास करता as हूँ, your personal Savior. मेरे उद्धारकर्ता के Come रूप into में my life मेरे जीवन में आइए प्रभु, and make a change in my life. मेरे जीवन में पूरा बदलाव लाइए Lord, प्रभु। we thank you. प्रभु आप धन्यवाद देते We हैं, worship you. आपकी स्तुति आराधना In करते Jesus' name we हैं। यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated
for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow.